today students we are doing chapter number 10, ratio, proportion and unitary method. So we have already discussed question number 1, 2 and 3. Now today we are going to proceed with the question number 4. First of all, statement is Mr. Sahai and his wife are both school teachers and earn rupees 16,800 and rupees 10,500 per month respectively. Find the ratio of given statements. So first of all, we are given the monthly income of Mr. and Mrs. Sahai respectively. Mr. Sahai की income है 16,800 rupees and Mrs. Sahai की income है 10,500 rupees per month. So we have to find the ratio of following statements. जैसे first statement है, we have to find out the ratio of Mr. Sahai's income to his wife income. हमें पहले हमने क्या किया, we have written the income of Mr. Sahai and then Mrs. Sahai. We have to find the ratio of Mr. Sahai's income to Mrs. Sahai's income. So Mr. Sahai की इनकम रुपीज़ कितनी है 16,800 रेशियो एंड मिसेस सहाय की इनकम है 10,500. ओके, सो नाउ इसे हम डिवीजन इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. Now you can see that both these zeros can be cancelled. Okay, after that we are left with 168 and 105. उसके बाद हमने क्या किया बेटा, हमने HCF find out किया है. You can find out the HCF either by prime factorization method or by division method. Okay, so HCF हमारा आ गया है, मैंने यहाँ पर prime factorization method use किया है and HCF is highest common factor and here are HCF is 21. Now the next step is we have to simply divide the given fraction by the HCF. So 168 divided by 21 gives us 8 and 105 divided by 21 gives us 5. It means Mr. Sahai's income ratio with her wife's income is 8:5. In second part we have to find out Mrs. Sahai's income to her husband's income. So इसमें हम क्या करेंगे, पहले मिसेस सहाय की इनकम लिखेंगे, देन रेशियो साइन एंड देन हर हस्बैंड्स इनकम. नाउ वी विल राइट इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म. दीज जीरोस कैन बी कैंसल्ड. आफ्टर दैट वी विल बी लेफ्ट विद 105 अपॉन 168. अगेन हमारे पास 105 अपॉन 168 आया है. यही दोनों नंबर्स हमारे पास लास्ट पार्ट में भी थे, फर्स्ट पार्ट में भी थे. एंड यू कैन सी दैट उनका HCF क्या था, 21 था. इट मीन्स इस फ्रैक्शन को भी हम 21 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 105 डिवाइडेड बाय 21 अपॉन 168 डिवाइडेड बाय 21. नाउ 105 divided by 21 gives us 5 and 168 divided by 21 gives us 8. So Mrs. सहाय की इनकम की रेशियो Mr. सहाय के इनकम से कितनी होगी, 5:8. Now coming to the third part. The third part is we have to find out the ratio of Mr. Sahai's income to the total income of the two. हमें क्या फाइंड आउट करना है, Mr. सहाय की इनकम की रेशियो फाइंड आउट करनी है. किस रेशियो के साथ, दोनों इनकम मिस्टर एंड मिसेस सहाय के इनकम के टोटल के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द टोटल ऑफ द इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सहाय. सो उन दोनों की इनकम को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 27,300 रुपीज़. ओके, नाउ रेशियो विल बी लाइक दिस. हमें मिस्टर सहाय की इनकम की रेशियो किससे फाइंड आउट करनी है, मिस्टर एंड मिसेस सहाय के इनकम के टोटल के साथ. सो we have written it like this, 16,800 ratio 27,300. Now you can see that we have written it in the fraction form. These zeros can be cancelled. After that we are left with 168 upon 273. Now the next step is we have to find out the HCF of 168 and 273. यहाँ पर भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है. यू कैन ऑल्सो यूज़ द डिविजन मेथड. So HCF is 21. Now in the next step we have simply divided the given fraction, that is 168 upon 273 by 21. After dividing these fractions we will get 8 upon 13. It means Mr. सहाय की इनकम का रेशियो टोटल इनकम के साथ कितना है, 8:13.
नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम है बेटा. द स्टेटमेंट इज रोहित अर्न्स. फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन बोथ आर सिमिलर. फर्स्ट क्वेश्चन में रोहित की इनकम कितनी है 15,300 रुपीज़ एंड ही सेव्स 1,224 रुपीज़ पर मंथ. वो इतने रुपीज़ सेव करते हैं. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स, हिज इनकम एंड हिज सेविंग्स. इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स की रेशियो फाइंड आउट करोगे. स्टेप्स विल बी सेम. सेकेंड स्टेटमेंट इज हिज इनकम एंड हिज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मीन्स द मनी स्पेंट, मीन्स जो भी मनी उन्होंने स्पेंड की है. सो स्पेंट मनी पहले आप फाइंड आउट करोगे. इट मीन्स 15,300 उनकी अर्निंग है, इतने रुपीज़ वो सेव करते हैं. तो इस अमाउंट में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास उनकी जो मनी स्पेंट होगी वो आ जाएगी. सो उस मनी के साथ आपको इस इनकम को उस मनी के साथ जो आपकी आएगी उसके साथ आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है. एंड नेक्स्ट इज हिज एक्सपेंडिचर एंड हिज सेविंग. थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, जो जितनी मनी उनकी स्पेंडिंग थी उसके साथ आप किसका रेशियो फाइंड आउट करोगे, ये सेव्ड मनी का. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट.